So good morning students. So in this lecture we are going to study the branch and bound technique. Branch and bound technique. So this is our final unit number 5th, branch and bound technique. It is based on solving the optimization problems. So after completing this unit we will be doing some practice question and we will be solving few questions and we will be seeing observing few topics that were felt difficult to you all, such as finding the complexity or the Master's theorem or the backtracking approach and Queen's problem, etc. Okay. So a branch and bound technique, as you know, is used to solve the optimization problems. And what is this optimization problems? I can divide these optimization problems into maximization or the minimization problem. Okay, so let us suppose that I say ki I have to find the profit gained by a person. So the aim of that person will be to gain the maximum of profit. So for example, if I say you have to score some marks, so the aim of a student will be to score the maximum marks. The problem becomes the maximization problem. Minimization, for example, if I say ki you have to pay fine, so your aim will be to pay minimum or zero fine. Okay, so this kind of problem is a minimization problem. Or for example, let us suppose that a traveler wants to travel different cities. What will be his aim? His aim is to spend minimum of the rupees on buying the tickets for traveling. So this is a minimization problem. Branch and bound can be used to solve the optimization problems. Here the two terms are used. First term is branch and second is bound. So what is this branching means? Here the branching means that we are preparing a state space tree, the same tree that we are drawing in the backtracking problems, state space trees. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट दिस इज ए स्टेट वन. इस स्टेट वन के बाद ये जा सकता है मान लीजिए 3 स्टेट्स में, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4 में. ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ इनपुट. फॉर एग्जाम्पल फॉर द इनपुट x is equal to a, x is equal to b, x is equal to c. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रैवलर वॉन्ट्स टू ट्रैवल, तो a रुपीज़ खर्च करके वो कहाँ कहाँ जा सकता है, b रुपीज़ खर्च करके वो इस सिटी पे जा सकता है, एंड c अमाउंट खर्च स्पेंड करके वो इस सिटी पे जा सकता है ना. इसी तरीके से वी कैन डिवाइड दिस ट्री इनटू दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना. So this is known as the branching. And what is the meaning of this bound here? Here the meaning of this bound is to limit our branching or to limit the traversing. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये 4 सिटी के बाद कहीं और ना जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाउंड लगा दूंगा. ठीक है, तो मैंने एक लिमिट लगा दी कि मुझे उसके आगे ट्रैवर्सिंग करनी ही नहीं है. ठीक है, तो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, दिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक. व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? बैक ट्रैकिंग में एज यू ऑल नो कि हम जो सर्च टेक्निक यूज़ करते थे ट्रैवर्सिंग के लिए, हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शुरू किया, ट्रैवल करते हुए मैं डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डेप्थ पे जाता था, है ना. अगर मुझे यहाँ पे लीफ नोड पे सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, वरना मैं दोबारा ऊपर जाऊँगा और फिर इसकी डेप्थ तक जाऊँगा, है ना. इन दिस सिमिलर मैनर आई विल ट्रैवर्स द ट्री. सो दिस ट्रैवर्सल इज नोन एज डेप्थ फर्स्ट सर्च. While using the branch and bound technique, the search technique that we will be going to implement is the breadth first search. Now अब इस breadth first search में क्या होगा? breadth first search में जो भी ट्रैवर्सिंग होगी वो लैटिट्यूड के हिसाब से होगी, ना कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से.
यानी कि मैं सबसे पहले इन नोड्स को विज़िट करूँगा जो लेवल 0 पे हैं, उनके बाद लेवल 1 वाली नोड्स को लेफ़्ट टू राइट विज़िट करूँगा, फिर नेक्स्ट लेवल की नोड्स को विज़िट करूँगा एंड सो दिस काइंड ऑफ ट्रैवर्सल इज़ नोन एज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब इस बाउंडिंग की बात करें तो एज यू ऑलरेडी नो कि बाउंड्स हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है हमारे पास अपर बाउंड और एक होता है लोअर बाउंड, है ना। ये शायद आपने कभी ना कभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा, अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, तो अपर बाउंड कब यूज होगा, व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई विल यूज द अपर बाउंड। इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई विल यूज द लोअर बाउंड। So this was a brief overview. To solve this branch and bound based questions, we are having the 3 methods or techniques. What are these techniques? First method is FIFO, first in first out branch and bound algorithm. Second technique or second method is LIFO, last in first out branch and bound algorithm. Third technique is least cost branch and bound algorithm. So first in first out यानी कि जो आपके जो भी सीक्वेंस बन रहा है उसमें जिस भी एलिमेंट की एंट्री सबसे पहले हुई है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। सो यू ऑलरेडी नो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ क्यू, है ना। जैसे कि रिजर्वेशंस वगैरह में जो लाइन लगती हैं रेलवे रिजर्वेशन में, वो क्यू में लगती हैं, यानी कि जो सबसे पहले लाइन में लगा है वो उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। सो इसी तरीके से अगर ये लीफो है, स्टैक बेस्ड है, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ होगा स्टैक, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा क्यू। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो है आपका प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो फीफो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक पे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्यू का यूज़ करने वाले हैं। So let us consider this problem. This is a question from sum of subset problem. ठीक है, तो सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम में कोई एक सेट गिवन होगा हमारे पास, उसमें से हमें उस सेट का सबसेट निकालना है। कोई एक वैल्यू दी होगी, उनका सम जो होगा उस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। Let us suppose that there is a set given W1, W2, W3 and W4. Let us suppose these are the weights. और जो इनकी वैल्यूज़ गिवन है वो गिवन है एक सेट में मुझे। सो दिस विल बी एसेंशियली अ सेट 7, 4, 9 and 6. द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 13 होनी चाहिए। आपको एक ऐसा सबसेट बनाना है, यानी कि यहाँ से कुछ नंबर्स चूज़ करिए, इस तरीके से चूज़ करिए कि उनका सम जो है 13 हो। ठीक है, तो आपको रैंडमली तो आप कर ही सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यू ऑलरेडी नो कि 7 + 6 जो है वो 13 होना चाहिए, 9 + 4 जो है वो 13 होना चाहिए। और सेट है तो आप इसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि 7 + 6 एक अलग वैल्यू हो गई, 6 + 7 एक अलग वैल्यू हो गई, है ना। आपको एक सबसेट बनाना है तो 7, 6, है ना, सबसेट, दिस इज दिस सबसेट। तो एक सबसेट ही हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, 6, 7 भी वही है। ठीक है, एक और सबसेट आप बना सकते हैं 9, 4, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। तो उसको देखते हैं और इसमें थोड़ा सा ट्रैवर्सल भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैवर्सल किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज इनकी वैल्यूज़ ले लीजिए, इसको x1 मान लेते हैं, x1, x2, x3 एंड x4, है ना। जस्ट लेट अस सपोज
तो सबसे पहले कोई एक इनिशियल स्टेट होगी यहाँ पे, है ना। लेट अस सपोज इस इनिशियल स्टेट को मैं मान रहा हूँ 1, ठीक है। और यहाँ पे साइड बाय साइड में एक क्यू को भी मेंटेन कर रहा हूँ। क्यू क्या है? क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेट को रखा है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले आया है इस क्यू में उसी की प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को वैनिश आउट करता हूँ, इसकी प्रोसेसिंग करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी तो प्रोसेसिंग हो चुकी है। यानी कि अब स्टेट 1 को मैं सबसे पहले मैं किस किस आइटम को चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका ट्री जो है एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग ट्री की तरह नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का यूज़ करने वाले हैं। इस सीक्वेंस को हम मेंटेन रखेंगे, इस सीक्वेंस को कभी तोड़ने वाले नहीं है, अनलाइक आवर बैक ट्रैकिंग ट्री, ठीक है। तो मैं स्टेट 1 पे, यानी कि स्टेट 1 से अगर मुझे दूसरी स्टेट पे जाना है, इनिशियली मुझे कोई वैल्यू रखनी है, तो मैं कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ? या तो मैं रख सकता हूँ x1, पहली वैल्यू 7 रख लेता हूँ। लेट अस सपोज x1 है 7, और x1 अगर मैंने 7 लिया तो मैं दूसरी स्टेट पे चला गया हूँ। लेट अस सपोज दिस इज़ माय स्टेट 2। अगर मैंने लिया है x2, और मैं क्या क्या रख सकता हूँ? x2 की वैल्यू 4 रख सकता हूँ। ऐसा करते हुए मैं दूसरी स्टेट पे चला गया हूँ 2, 3, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे नोट करता हुआ जाऊँगा 2, 3, जो जो स्टेट्स आती रहेंगी उनको मैं इस क्यू में एंट्री करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आया 2, उसके बाद आया 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं रखता हूँ x3 की वैल्यू को 9 में रखता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे चला गया। नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? 4, तो आई विल राइट 4 है। इसी तरीके से अगर मैं रखता हूँ x4 इक्वल टू 6, तो ये ट्री बनाना ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। x4 की वैल्यू रख दी मैंने 6। तो फिलहाल मेरा ये है, सॉरी, दिस इज माई स्टेट नंबर 5, तो आई विल राइट 5 है। ओके, सो दिस इज माई क्यू और दिस इज माई ट्री, ठीक है। अभी देखिए मुझे फर्दर एक्सटेंशन करना है। अब देखो ट्रैवर्सल भी कैसे चल रहा है। सबसे पहले मैंने इसको ट्रैवर्स किया, उसके बाद मैंने कौन कौन सी नोट्स रखी, मैंने इन नोट्स को रखा है, ठीक है। तो ट्रैवर्सल भी आप नोट करते हुए चलिए। आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। दिस इज़ योर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के हिसाब से ट्रैवर्सल चल रहा है, ठीक है। अब वैसे भी आप देखिए क्यू में सबसे पहले कौन आया था? 2 आया था। तो अब मुझे यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसका अगर कोई पॉसिबल एक्सटेंशन हो सकता है तो मुझे इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स भी मेंटेन करता हूँ। वो स्टेट्स हैं मेरी, फर्स्ट है लाइव नोड, है ना, दीज ऑल आर दी नोड्स, लाइव नोड। सेकेंड है मेरी एक्सपेंड नोड, थर्ड है डेड नोड, और फोर्थ है मेरी आंसर नोड। लाइव नोड्स में वो सारी नोड्स जो कि अभी क्यू में एक्टिव हैं। एक्सपेंड नोड जिसको मैं अभी एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जिसको मैं काट रहा हूँ तो मैं अभी इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ ना, तो दिस विल बिकम माई एक्सपेंड नोड। डेड नोड यानी कि जो अब मैं इसको आगे ट्रैवर्स नहीं करूँगा, इसी को मैं बाउंड फंक्शन से डेड कर दूंगा, ठीक है। आंसर नोड जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट जहाँ पे आ रहा होगा, दैट विल बिकम माई आंसर नोड, ओके। तो अब मैं अगर इस स्टेट को फर्दर एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है? देखो अब मुझे इसके सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू 7 ले चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे क्या क्या आ सकता है? आगे आ सकता है x2, x3 और x4। तो आई विल राइट, अगर मैं x2 को 4 ले लूँ तो मैं दूसरी स्टेट पर चला जाऊँगा, कोई नई स्टेट बन जाएगी यहाँ पे। लेट अस सपोज 5, तो यहाँ पे बन जाएगा 6, ठीक है। x3 की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ, 9 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और x4 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6, ये सब यहाँ पे आ सकती है। तो लेट अस सपोज जो स्टेट्स बनी उनको मैं नाम दे देता हूँ 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो आपका जो क्यू होगा, ठीक है, अभी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू कुछ आपको ऐसी दिखेगी। ये 2 तो चला गया, 2 तो एक्सपेंड हो गया, तो यहाँ पे है 3, 4, 5,
6, 7 और 8 ये 3 नई एंट्री हो चुकी हैं, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये पुरानी क्यू की वैल्यू थी, अब नई क्यू की वैल्यूज ये बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि अब मैं नेक्स्ट फर्दर किसको ट्रैवर्स करूँगा, यानी किसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा, या 6 को करूँगा या 3 को करूँगा। तो आंसर विल बी 3। क्यों? क्योंकि मैं तो इसके हिसाब से चल रहा हूँ। पहले मुझे 0 लेवल को ट्रैवर्स करना था, फिर मुझे फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करना था। और वैसे भी आप देखेंगे तो क्यू में सबसे आगे कौन है, क्यू में सबसे आगे 3 है, तो मैं 3 को ही फर्दर एक्सपेंड करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं इस 3 को यहाँ से काटता हूँ और 3 को यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 हो चुकी थी, है ना। अब मैं बैक ट्रैकिंग ट्री के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ इसको, तो ये ट्री में डिफरेंस है, मुझे सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है। ठीक है, x2 की वैल्यू 4 थी, तो इसके आगे अब क्या क्या बचा है, x3 और x4 मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x3 की वैल्यू मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 9, और ऐसा करते हुए स्टेट बन जाएगी कोई एक नई, 8 के बाद 9th स्टेट, और x4 की वैल्यू मैं रहता हूँ 6, और ऐसा करते हुए स्टेट बन जाएगी 10। ठीक है, अगर मैं q की बात करूँ तो q में अब क्या क्या है मेरे पास, q में है मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 अभी दोबारा आ गए, है ना। ये मेरी नई q है। ठीक है, अब मैं फर्दर किसको एक्सपेंड करूंगा, अब मैं 4th को एक्सपेंड करूंगा। तो 4th इज माय एक्सपेंड नोड एंड ऑल दीज नोड्स आर लाइव नोड्स। ओके, तो 4th को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो 4 ये कैसे आया था, ये 4 इस तरीके से आया कि मैंने x3 की वैल्यू को 9 लिया है। ठीक है, तो x3 के बाद अब क्या आ सकता है, सिर्फ x4 आ सकता है। तो आई विल राइट x4 इक्वल टू 6 हेयर, एंड दिस विल बिकम माई न्यू स्टेट। दिस स्टेट विल बी नोन एज 11th स्टेट। कोई भी आपने नाम दे दिया है स्टेट को, 11th स्टेट। तो मैंने 11 की एंट्री इस क्यू में भी कर दी है। ठीक है, अब मैं अगर फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, नेक्स्ट नोड 4th चला गया, 4th को मैंने एक्सपेंड कर दिया है, 5th नोड बची है। ठीक है, 5th नोड यानी कि इस वाले नोड को एक्सपेंड करना है। इस नोड को एक्सपेंड करने के लिए देखते हैं क्या करना है। x4 की वैल्यू मैं 6 ले चुका हूँ, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो मुझे बाउंड करना ही पड़ेगा। आई विल टर्मिनेट दिस एज द बाउंडिंग नोड, और अब मैंने इसको डेड बना दिया। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ, मुझे टोटल कितना चाहिए था, 13 चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही आ पाया। ठीक है, और 6 के बाद कुछ नहीं है, और कुछ तो आ नहीं सकता x4 के बाद, तो वैसे भी मुझे इसको बाउंड करना पड़ेगा। तो इसको अब मैंने बाउंड कर दिया, यानी कि अब मैं इसको आगे फर्दर ट्रैवर्स नहीं करूँगा। तो 5th नोड को भी मैंने देख लिया, इसको मैं फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकता था। तो इस क्यू के हिसाब से भी आप देखें तो अब आपको आपकी जो एक्सपेंड नोड है वो बन जाएगी 6th, ये वाली। ठीक है, और वैसे भी आप देखिए तो अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो 6th को मैं क्या फर्दर एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैन आई एक्सपेंड दिस 6 फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 मैंने ले लिया है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया है, x2 4 कंसिडर कर लिया है, इसको मैं अब फर्दर एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं ले लेता हूँ x3 की वैल्यू को 9, और ऐसा करते हुए लेट अस सपोज मैं आ गया हूँ एक नई स्टेट पे, 12th स्टेट पे, और x4 को ले लेता हूँ मैं 6। ठीक है, और ऐसा करते हुए मैं आ गया हूँ एक नई स्टेट पे, 13 पे। तो आई विल राइट हेयर, आई विल ऐड 12 एंड 13 हेयर। ठीक है, और 6th नोड को तो मैंने ट्रैवर्स कर दिया, आई विल कट इट डाउन। अब 6th नोड के बाद मैं किसको ट्रैवर्स करूँगा, मैं 7th नोड को ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, तो 7th नोड को जब मैं ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, लेकिन एक बार ये भी देख लीजिए कि इसका टोटल कितना हो चुका है। ठीक है, इसको कहीं बाउंड करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो ये आप हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि अगर मैं 7th इस स्टेट तक आया हूँ तो टोटल कितना बन रहा है मेरा, 7 + 9। तो आप देखेंगे 9 + 7 तो 16 हो गया है ना। और अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूँगा तो कुछ और ऐड हो जाएगा, जबकि मुझे m की वैल्यू क्या डिज़ायर्ड थी, 13 थी, तो मुझे इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे बाउंड फंक्शन लगा देता हूँ, यानी कि इसको मैं अब फर्दर एक्सपेंड करूँगा ही नहीं।
ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाउंड फंक्शन, अब देखिए बाउंड फंक्शन मैंने कहाँ कहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं किसको एक्सपेंड करना चाहूँगा, मैं 8th नोड को एक्सपेंड करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं यहाँ तक आने पे कितनी वैल्यू हो चुकी है, 7 + 6 13। देखो यहाँ पे मेरा टारगेट पहले ही अचीव हो चुका है। ठीक है, तो दिस विल बिकम माई आंसर नोड। आंसर नोड, ये है मेरी आंसर नोड। और अगर मेरा आंसर आ ही गया है, जो ऑप्टिमम वैल्यू मुझे डिज़ायर्ड थी वो मुझे मिल गई है, तो शैल आई फर्दर इलेबरेट इट और नॉट, आई विल नॉट इलेबरेट इट। मैं इसको भी यहाँ पे बाउंड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये आंसर नोड मिल चुकी है। तो आई विल कट डाउन दिस 8th। ठीक है, अभी देखिए अब मैं किसको एक्सपेंड करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा इस 9th को। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको काउंट भी कर लेते हैं यहाँ तक वैल्यू क्या बन रही है। तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है 4, 4 + 9 इज़ ऑलरेडी 13, ये पहले ही 13 है। तो इस 13 को मैं और फर्दर क्यों इलेबरेट करूँ, मैं इसी को आंसर नोड बना देता हूँ। तो दिस विल ऑल्सो बिकम माई आंसर नोड, और मैं यहाँ पे बाउंड फंक्शन लगा दूंगा। बाउंड फंक्शन क्यों लगाया, बाउंड फंक्शन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे इसे फर्दर इलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी है ट्रैवर्सिंग पे, तो मुझे 2 आंसर नोड्स मिल चुकी हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके बाद क्या है, 10th है। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं इसको इलेबरेट करूँगा तो पहले सम देख लेता हूँ। तो ये है 4, 4 और 6 इज़ 10। तो हाँ, मैं इसको फर्दर इलेबरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ायर था 13 का सम। ठीक है, तो जब मैं इसको फर्दर इलेबरेट करूँगा तो x2 की वैल्यू थी 4, x4 की वैल्यू है 6। तो आप देखेंगे x4 के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। तो अगेन आई विल बाउंड दिस फंक्शन। ठीक है, तो 10th को मैंने बाउंड कर दिया। 11th को देखते हैं, यानी कि इस वाली नोड को। तो 9 + 6, 9 + 6 इज़ 15, आगे चला गया, इसको एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड कर दीजिए इसको। 11 को मैंने बाउंड कर दिया। नेक्स्ट इज़ 12। 12 कहाँ पे है, ये है। तो 12 पे आप देखिए, इसको यहाँ पे आने में कितना सम लग गया है, 7 + 4 11, 11 + 9 है ना, आगे बहुत आगे चला गया। बाउंड कर दीजिए, 12th को भी बाउंड कर दीजिए। 13 को देखिए, 7 + 4 11, 11 + 6 है ना, तो 13 से बहुत आगे चला गया, इसको भी बाउंड कर दीजिए। यानी कि आप इसको फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने देखा विद द हेल्प ऑफ अ क्यू। जो मेरी आंसर नोड्स आई वो क्या आई, एक तो ये वाला पाथ मेरा आंसर नोड आया है ना 8th पे, और एक 9th पे। तो 8th पे आने के लिए मैंने x की कौन कौन सी वैल्यूज़ को विज़िट किया, मैंने विज़िट किया 8 x1 = x1 को और x4 को, है ना। और 9th पे आने के लिए मैंने किस किस को विज़िट किया, यहाँ पे आने के लिए मैंने विज़िट किया 4 को और 9 को। तो आई कैन राइट इट एज x2 एंड x3, है ना, x2 एंड x3। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। This is the solution of my sum of subset problem. Thank you very much.